for me, it is very, 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 very surprising. I think it would be unfortunate to have me around his side on sitting with Rohit at the PC. Since he has announced, I am not going to take too much of your time. This will be my last year as an Indian cricketer at the international level. मतलब वो बोल रहे हैं my last year as an Indian cricketer at the international level. आगे आ जाइए. There's a bit left in me as a cricketer, but I would like to exploit it at the domestic and club level cricket. But this would be the last day at the international level. I have had a lot of fun, a lot of memories alongside Rohit, and several alongside Rohit को तो बोला है उन्होंने कि I have had fun alongside Rohit, and my other teammates. We've lost some of them over the last few years. We've been in the last bunch of OGs, I can say that are left in the dressing room. I can mark this as my last day in the dressing room. I have several people to thank, but I would be failing in my duties if I didn't thank the BCCI and my teammates. I want to name a few of them. All of the coaches who've been part of the journey, most importantly Rohit, Virat, Ajinkya Rahane, Cheteshwar Pujara, who've taken a number of catches around the bat and have given me a number of wickets that I have managed over a number of years. Also want to thank the Australian team who've been fierce competitors over a number of years. I've enjoyed my team playing against them. It's already getting long. I won't be taking any questions. Obviously, why would you take questions? Because people will ask why you're retiring between the series. Truly emotional moments, and I am not in a position to answer any questions in the right manner. Once again, thank you for being the journalist you've been, for writing good things and some nasty things at times. It's a relationship I think we'll maintain forever, and I hope you give the other cricketers the same amount of love that you've showered upon me. I have stopped as a cricketer, but I'll go on to be involved with the game. It's a game which has given me a lot. I think very, very emotional moment, and obviously यार वहाँ से पता चल ही रहा है कि उन्होंने एक मतलब he is hurt somewhere. ऐसे कोई रिटायर नहीं करता. मैं ये भी मानता हूँ कि आप हर्ट होंगे, आप डिस्टर्ब्ड होंगे, आपसे कैरी ऑन नहीं करा जा रहा होगा, लेकिन मिड सीरीज थर्ड मैच के बाद आपने जो है सीरीज को छोड़ दिया, अलविदा बोल दिया, और आप बोल रहे हैं मेरा लास्ट दिन है ड्रेसिंग रूम के अंदर. जिन लड़कों के साथ आप गए हो, वहाँ पे खेल रहे हो, वॉशी देख रहा होगा यार मेरी वजह से इनकी रिटायरमेंट हो गई, जडेजा देख रहा होगा यार मैंने इनकी जगह खा ली, बाकी लड़के देख रहे होंगे कि यार अगर इसके साथ ये हो सकता है तो हमारे साथ क्या होगा 3-4 साल के बाद. तो किसी को भरो इनसिक्योरिटी फैल गई होगी ड्रेसिंग रूम में. और ऑस्ट्रेलियंस भी तो देख रहे होंगे, ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी तो देखेगी कि इंडियन क्रिकेट में क्या तमाशा चल रहा है. ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन पूरी टीम देख रही होगी कि यार अश्विन उनके लिए बहुत बड़ा फिगर है. बाय द वे, वो विराट कोहली की इज्जत करते हैं, ऋषभ पंत की इज्जत करते हैं, अब जसप्रीत बुमराह की करते हैं, तो अश्विन की भी करते हैं. भाई उनको पता है अश्विन फाइटर है, अश्विन ने हमेशा लड़के खेला है. और ये तो मुझे कोई भी नहीं बोल सकता कि अश्विन जो है वो मेलबर्न या सिडनी, स्पेशली सिडनी में नहीं इंपैक्ट डाल सकता था. उसका इंपैक्ट हो सकता था वहां पे. और मैं तो ये बोलूंगा कि पिंक बॉल टेस्ट मैच आपको जडेजा को खिलाना चाहिए था, गाबा में आप अश्विन को खिलाना चाहिए था. आप पता नहीं क्या कर रहे हो, उल्टा सीधा खिलाया जा रहा हो, सबको कैसे मैनेज कर रहे हो. आई थिंक रोहित ने इसको खिलाया भी इसीलिए है एडिलेड, ताकि ये रिटायरमेंट ना ले, वरना ये पहले रिटायरमेंट ले लेता. आई थिंक सो, जो लग रहा है, जिस हिसाब से देख रहा हूं मैं जो हुआ है, शायद इसकी रिटायरमेंट रोकने के लिए ही इनको जबरदस्ती, जो बोल भी रहे रोहित शर्मा कि मैंने फोर्सफुली उसको एडिलेड टेस्ट खिलाया कि नहीं तू खेल, रिटायर मत हो. बिकॉज रोहित शर्मा को ये समझ में आ गया था कि यार ये चलती सीरीज में रिटायरमेंट ले लेगा, जो टीम के लिए अच्छा नहीं है. और रोहित ने पूरा, मैं उनको क्रेडिट देता हूं कि संभालने की कोशिश करी. But I think things obviously look like they got so ugly between क्वेश्चन मार्क के साथ. मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या चीजें इतनी अगली हो गई थी गौतम गंभीर के और रविचंद्रन अश्विन के बीच में कि उनको रिटायरमेंट ही लेनी पड़ गई. वॉज ही सो डिस्टर्ब्ड कि ही थॉट कि नहीं यार मेरे साथ अनफेयर हो रहा है तो मैं छोड़ के जा रहा हूं, आप लोग अपना करें. बट ऐसे यार बीच सीरीज में टीम को छोड़ना नहीं चाहिए, हमारा कल्चर हो गया. धोनी बीच सीरीज में कप्तानी छोड़ देते हैं, विराट बीच सीरीज में कप्तानी छोड़ देते हैं, आज अश्विन ने आराम से बीच सीरीज में रिटायरमेंट ले ली. ये ठीक चीज नहीं है यार, ये ठीक चीज नहीं है. आपको बीच सीरीज के अंदर आप छोड़ दो, कोच क्या कर रहा है, आपको खिला रहा है नहीं खिला रहा, जो मर्जी हो, आप अपने टीममेट्स को पीठ दिखा के नहीं जा सकते. इसमें मैं गौतम गंभीर को कभी भी वो नहीं गलत नहीं बोलूंगा. मैं इसमें हमेशा, अगर इतिहास देखेगा यही दिखेगा, अश्विन ने रिटायरमेंट ले ली बीच सीरीज में. आपको नहीं भागना चाहिए ऐसे. आप जो भी है, यू फेस द म्यूजिक. If you have to sit on the bench, you sit on the bench. आपकी वजह से यंग लड़के कितने साल से बेंच पे बैठे हैं भाई. अक्षर पटेल का सोचो आप, वो अच्छा करके बाहर, कुलदीप यादव का सोचो आप, वो अच्छा कर करके बाहर बैठे हैं, उनको जगह नहीं मिलती है.
आपको खिलाई, इतनी इज्जत मिली है। जब आज आपकी बारी आई है कि आपको बेंच पे बैठना है एंड यू हैव टू टेक इट ऑन द चिन फॉर द टीम, तो यू हैव टू टेक इट विद ग्रेस। यू कांट बी अ प्रीमाडोना एंड से कि नहीं भैया हम रिटायरिंग। मुझे तो ये बात ठीक नहीं लगी है भाई, बिकॉज इससे टीम का माहौल खराब होता है। पता नहीं आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसमें, आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है इस पर, बट भाई आई डो नॉट अग्री विद दिस कि आप इस तरीके से रिटायर करें और आप इतने कोई बड़े खलीफा बन जाए और चले जाए। मैं मानता हूं बहुत बड़े प्लेयर हैं, नो डाउट, बट टीम का माहौल खराब होता है। चाहे गौतम गंभीर हो, चाहे रविचंद्रन अश्विन हो, चाहे रोहित शर्मा हो, ये नहीं। शर्मा जी को सोच लो ना भाई, कहां फंस गया वो आदमी। हम लोग के लिए बड़ा आसान है रोहित शर्मा को विलन बनाना। मैं बोलता हूं चलो मैं भी इमोशनल होके इन द मोमेंट बोल देता हूं बहुत सारी बातें, बट जस्ट लुक एट रोहित शर्मा। वो अभी आया है यार, वो फिर से, उसके भी फैमिली है भाई, वो भी इंसान ही है, उसके अभी बेबी बॉर्न हुआ है, उसको 2 दिन उसने नहीं गुजारे, वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है, बैटिंग का फॉर्म लगा नहीं हुआ, 3-0 आप न्यूजीलैंड से हार के आ रहे हो, वहां पहुंचा है वो। आप एडिलेड बुरी तरह हार गए, कोई वो अकेला तो नहीं फ्लॉप हुआ, सारे ही फ्लॉप हो गए, ठीक है। उसने कहीं ना कहीं अश्विन को बचाने की कोशिश करी, टीम का माहौल ठीक करने की कोशिश करी कि चलो भाई रिटायर मत हो, तू ये टेस्ट मैच खेल ले, तू खेल ले, तू ये टेस्ट मैच खेल, छोड़ना बच जा। वो फिर भी रिटायर कर गया। वो संभालने की टीम के ये अपना सास बहू के किस्से सुलझाए, वो बैटिंग करे, वो कप्तानी करे, वो क्या क्या करे भाई। या वो ऑस्ट्रेलियंस को देखे, वो ट्रेविस हेड के लिए प्लान बनाए कि वो अश्विन को संभाले, तो गंभीर को संभाले, कभी हर्षित राणा आ रहा है, कभी वो आकाशदीप को खिला रहा है, कभी वो अपनी पोजीशन को 6 नंबर पे कर रहा है। रोहित शर्मा के लिए आसान नहीं है भाई इधर इस टाइम पे। मैं तो रोहित शर्मा के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं, आप कप्तान को सपोर्ट करो ना। आपको बेंच पे बैठना, बेंच पे बैठो, यू टेक इट ऑन द चिन। आपके लिए कितने लोग बैठे हैं बेंच पे यार, आप सालों साल खेले हो, एक सीरीज आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। नहीं होना चाहिए, गलत है मेरे ख्याल से, तो बहुत गलत है। नहीं, आप कह रहे हो कि एक सीरीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, अगर आप टेक्निकली देखो, नॉट कंपेयरिंग, बट ईशान किशन का याद है आपको, उनको बेंच करा था तो कह रहे थे, मैं उन्होंने उनका आया भी थे बातें कि भैया बेंच होना उनको पसंद नहीं आ रहा था, उन्होंने छोड़ दिया। वो तो यंगस्टर था, अश्विन तो लेजेंड है यार, और कोई लेजेंडरी बंदा अगर बेंच पे बैठ रहा है वो बर्दाश्त करेगा यार। आप बीच सीरीज में छोड़ दोगे, बीच सीरीज में छोड़ दोगे, दिस इज नॉट फाइन। पर यहाँ पे आप एक चीज देखो, जो स्टेटमेंट है अपने अश्विन की, क्या बोला उन्होंने कि आई हैव लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट। एक बार रोहित शर्मा की स्टेटमेंट देखते हैं, फिर मैं प्रियांशु से भी इस पर बात करूंगा और आप भी बताइएगा। एक पोल भी डाल देते हैं इसमें, डू यू थिंक अश्विन डिड द राइट थिंग बाय रिटायरिंग मिड सीरीज? क्या बीच सीरीज में, ये हिंदी में डालो, क्या बीच सीरीज में अश्विन का रिटायरमेंट लेना सही है या गलत है, हाँ या ना? मतलब इसमें मैं सीधा पूछ रहा हूं कि अश्विन की गलती है नहीं, मैं और किसी पर इल्जाम नहीं डालूंगा, बिकॉज ना उन्होंने गौतम गंभीर को दोष दिया है, ना किसी और को दोष दिया है, उन्होंने रोहित को सपोर्ट ही किया है, उसने रोहित को थैंक यू बोला है, तो रोहित की तो कोई गलती नहीं लग रही। ये तो मुझे समझ आ रहा है, हाँ। रोहित की तो कोई यहां पे है ही नहीं, बल्कि रोहित ने तो संभालने की कोशिश करी कि भाई ऐसे मत कर यार, वो तुम्हारी आया है क्या कि वहां पे। मैं तो बिल्कुल इससे, मैं अब जैसे जैसे मैं इसके बारे में और सोच रहा हूं ना, मेरा और दिमाग खराब हो रहा है कि कर क्या रहे हैं ये लोग। वहां ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज दे दिया आपने यार, ऑस्ट्रेलिया भी तो देख रही होगी यार, टीम इंडिया में तो यूनिटी नहीं है।